নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো মই নাজিৰ আহমেদ। জেড কেটেগৰী নিৰাপত্তা নালাগে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিক। উলুটাই ওৱেইছিৰ প্ৰশ্ন, আক্ৰমণকাৰী কিয় ইউএপিএৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই? আম্বেদকাৰৰ সংবিধানত বিশ্বাস নকৰা কোন এই সকল কট্টৰ ব্যক্তি? বৃহস্পতিবাৰে ওৱেইছিৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলিয়াইছিল দুৰ্বৃত্তই। ঘটনাৰ পাছতে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। গুলীচালনাৰ পাছতে ওৱেইছিক জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান চৰকাৰৰ। জেড নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি। ওৱেইছিয়ে ক'লে, মই 1994 চনৰ পৰা ৰাজনীতিত আছোঁ। মই মুক্ত ব্যক্তি হৈ জীয়াই থাকিব খোজোঁ। মই জীয়াই থাকিব লাগিব, মই কথা ক'ব লাগিব। তাকে কৰি যদি মই গুলি খাওঁ মোৰ আপত্তি নাই। চৰকাৰক এই হিংসা শেষ কৰাৰ আহ্বান আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি গুলি কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। প্ৰায় 6 জাই গুলি ফুটাইছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছিলৈ লক্ষ্য কৰি। প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। তাৰ পাছতে দেশৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। তীব্ৰ আলোচনা হৈছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত। তাৰ পাছত সংসদত মুখ খুলিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা আৰু কৈছে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা মোক নালাগে, কিন্তু যিসকল আক্ৰমণকাৰী আছিল তেওঁলোকক ইউএপিএৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰা নাই? ক্ৰিকেট মেচ এখন চোৱাৰ পিছত কোনোবাই সমালোচনা কৰিলে, কিবা মন্তব্য কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইউএপিএৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হয়, কিন্তু এইকেইজন ব্যক্তি যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এজন সাংসদলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় ইউএপিএৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই? ইউএপিএৰ অধীনত কিয় তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আম্বেদকাৰৰ সংবিধানত বিশ্বাস নকৰা কোন এইসকল কট্টৰ ব্যক্তি? তাক লৈও সমালোচনা কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। বৃহস্পতিবাৰে ওৱেইছিৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলিয়াইছিল দুৰ্বৃত্তই। ঘটনাৰ পাছতে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। তেওঁলোকক সোধা পোছাও অব্যাহত ৰাখিছে। সচিন আৰু শুভম এই দুজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই দুজন ব্যক্তিয়ে গুলীচালনা কৰিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ বাহনলৈ। গুলীচালনাৰ পাছতে ওৱেইছিক জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছিল, কিন্তু জেড নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। তেওঁ কৈছে, মই 1994 চনৰ পৰা ৰাজনীতিত আছোঁ। মই মুক্ত ব্যক্তি হৈ জীয়াই থাকিব খোজোঁ। মই জীয়াই থাকিব লাগিব, মই কথা ক'ব লাগিব। তাকে কৰি যদি মই গুলি খাওঁ তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে আৰু সংসদৰ মজিয়াত এক প্ৰকাৰ ক্ষোভ উজাৰিছে আৰু চৰকাৰক এই যি হিংসাত্মক ঘটনা, এই হিংসা শেষ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। कल शाम में आपने फ़ोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ़्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फ़ौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी को एक रुकन पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ़ प्रदेश में इक़्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के ख़िलाफ़ हैं, जो इतनी नफ़रत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, ये सब के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूँ, 4 मरतबा का सांसद हूँ, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियाँ चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अज़ाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप?
अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में।